Fine. So this new chapter is about the mineral resources of India. Okay. Now, mineral का मतलब क्या होता है? Those materials which can be removed from earth and it can be used for commercial purposes. Okay. Like for example, we are having iron, we are having copper, we are having aluminium. ये हम extract करके माइन से extract करके उसको हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह. Okay. So we'll study about the different mining resources, mineral resources available in India. Okay. So mineral resources में there are basically two different types of minerals, metallic minerals and non-metallic minerals. Okay, metallic minerals are basically metals जो हम extract करते हैं to make machines and everything. Okay, so metallic minerals are a source of metals like iron, copper, gold. They are all metals. Metallic minerals are further categorized as ferrous and non-ferrous. Okay, ferrous means iron, and non-ferrous means everything not iron. Okay, because iron is one of the most important mineral that we need. Okay, in fact यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर आयरन और कॉपर इजीली अवेलेबल था, तो दे मेड अ लॉट ऑफ मशीन विद आयरन and they fueled those machine with copper, sorry, coal and iron का resources वहाँ पे ज़्यादा था. Okay, so hence metallic resources are classified as ferrous and non-ferrous mineral. Okay, ferrous minerals are those which have iron content like iron ore, whereas non-ferrous have copper, bauxite वगैरह वगैरह. ठीक है, non-metallic minerals. Okay, now fossil fuels, they are also a type of mineral, they are also a type of resource. हम लोग उसको dig up करके जमीन से निकाल के हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, but they are not metals. Okay, so hence they are non-metallic minerals. Okay, such coal, petroleum, mica, limestone, graphite, all of these things, they are not metals. Okay, again, mica, limestone, they are used for making marbles and tiles and everything. They are not metals, but still they are very important resources and we can dig it up and we can sell it for commercial purposes. ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है minerals, metallic and non-metallic. Metallic में ferrous and non-ferrous, and non-metallic में organic and inorganic minerals. Okay, so minerals have certain unique characteristics. First, minerals are not only evenly distributed over the space. Okay, so ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर जगह पे iron and copper is easily available. They are not evenly distributed. At some places we are having this ore, at some places we are having other ore. So different according to the places, ore का concentration will also change. Okay, minerals have inverse value in quantity and quality. Okay, तो अगर हम देखेंगे तो अच्छा क्वालिटी का रहेगा उसका क्वांटिटी कम रहेगा, ठीक है, और जो अच्छा लो क्वालिटी का रहेगा उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा. दिस इज द रीज़न वाई गोल्ड का रिजर्व्स बहुत कम होता है. गोल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट मेटल अवेलेबल ऑन अर्थ. ओके, अगर तुम गोल्ड का बना हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मशीन इस्तेमाल करो तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा. ओके, बट वी डोंट फाइंड गोल्ड माइंस एवरीवेयर. देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे गोल्ड निकलता है. ऑन द अदर हैंड एल्यूमिनियम एंड आयरन वगैरह वो बहुत सारी जगह पे अपने को मिलता है. ओके, तो जितना एक्सपेंसिव मेटल, जितना अच्छा क्वालिटी का मेटल रहेगा वो उतना कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा. ओके, एंड मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम. ऑब्वियसली वी डोंट हैव इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ मेटल्स. आफ्टर सर्टेन टाइम मिनरल्स विल गेट एग्जॉस्टेड. ओके, ये जो फॉसिल फ्यूल पे हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक ड्यू डेट है. आफ्टर 150 ईयर्स हम लोग ऐसे अगर इस्तेमाल करते रहे then all this fossil fuel will get destroyed, will get finished up, not destroyed but will get used up. फिर हमारे पास और फॉसिल फ्यूल बचेगा ही नहीं. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस बाय मिनरल्स. लुक एट सऊदी अरेबिया, look at Kuwait, look at Qatar. They have sold their resources. ठीक है, लोग ने नेचुरल गैस सेल किए, क्रूड ऑयल सेल किए, एंड राइट नाउ दे आर वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस एंड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, तो अगर किसी कंट्री के पास अगर मिनरल रिसोर्सेज अगर अच्छा रहेगा तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है. एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. ओके, वेदर फर्टिलाइजर इज अवेलेबल और नॉट. इंडिया हैज वेरी रिच मिनरल्स. ओके, तो इसकी वजह से इंडिया में आयरन और कोल, माइका, मैंगनीज वो सब बहुत मिलता है. इंडिया हैज ऑल्सो एक्सटेंसिव रिसोर्सेज ऑफ क्रोमाइट, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन. Okay, so these are all different available resources in India. Okay, let's go to the next page. Just one sec. Okay, acha, look, wait, let me just open it up. हाँ, so now we'll study about the iron ore. Iron ore में क्या क्या है, ठीक है. So iron is one of the most widely distributed minerals. Mostly जितने भी इंडिया में throughout the world जो भी machines बनते हैं, most of them are made up of iron. It is one of the most important mineral needed in the world. Okay, iron ore deposits in India occur as hill masses and are easily accessible.
ठीक है। तो एंटायर पहाड़, हिल मासेस मतलब पूरा का पूरा पहाड़ ये आयरन का ओर का बना हुआ है। ओके, सो वी कैन कट इट ऑफ एंड वी कैन सेल इट ऑफ फॉर अ गुड प्राइस। ओके, हम लोग को डिगअप करने के निकालने की जरूरत नहीं है, वो पहाड़ में ऑलरेडी जमीन के ऊपर है। सो वी आर हैविंग डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज एंड कोल। तो ये सब के एरिया के नजदीक में भी हमको आयरन मिलता है। ओके, therefore they are well utilized in several iron and steel plants in India. There are three varieties of iron ore. Okay, hematite, magnetite and limonite. Okay, let me show you images. Okay, ये देखो, this is iron ore. Okay, basically ये जो पत्थर है, ठीक है, ऐसा टाइप का पत्थर रहेगा। Sometime it is reddish, sometime it is blackish, depending upon what kind of this you are having। ठीक है, what kind of hematite है, lignite है, magnetite है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे देखो पहाड़ है, वो पहाड़ को कट कर करके हम उसका एक अलग अलग लेयर निकाल देंगे। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली दैट यू कैन सी दैट यहाँ पे जो मिट्टी है थोड़ा रेडिश इन कलर है। वो रेड पता है क्यों हो जाता है? देखो यहाँ पर भी इट इज लिटिल बिट ऑफ रेडिश इन कलर। ठीक है, ये रेड इसलिए होता है बिकॉज आयरन इजीली रिएक्ट्स विद oxygen in the air and it forms iron oxide, and iron oxide is red in color। okay, on the other hand if you observe magnetite, magnetite is another iron ore, वो ऐसा होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर वो ऑक्साइड ऑक्सीजन से अब तक रिएक्ट नहीं किया है इसने, तो इसकी वजह से इट इज स्टिल ब्लैक इन कलर एंड इट हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू रेड। ओके, सो ये देखो यहाँ पर माइनिंग कर दिए है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लेयर टू लेयर दे कीप ऑन कटिंग एंड दे कीप ऑन सप्लाइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ ओर अवेलेबल टू द नियर बाई फैक्ट्रीज। ओके, तो इंडिया में इट इज एक्सटेंसिवली अवेलेबल। ओके, लेट अस गो टू बैक टू दैट। ओके, हाँ, देन हेमाटाइट, हेमाटाइट इज रेडिश इन कलर, जैसे मैंने बताया था इट इज रेड। और ये 60 to 70% इंडिया में क्या 60 to 70% प्योर आयरन होता है उसके अंदर। तो इफ यू टेक 100 grams ऑफ हेमाटाइट, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 grams इज iron. It is found in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka and Maharashtra. Then we are having magnetite. Okay, magnetite is dark brown, वो black और मैंने अभी black photo बताया था। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन, कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ देम। ओके, क्योंकि यहाँ पर अब तक आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं किया है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइट बिकॉज इट इज हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तमिलनाडु और कर्नाटका में है। ठीक है, देन वी आर हैविंग लिमोनाइट। लिमोनाइट इज येलोविश एंड लाइट ब्राउन इन कलर और इसका आयरन कंटेंट सबसे कम है 35 to 50%। इट इज फाइंड इन रानीगंज, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, कांगड़ा वैली, यहाँ यहाँ पे मिलता है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट, uses of iron ore। Okay, now 90% of the iron ore is used to make steel। Okay, now difference between iron and steel is what? Okay, now iron is pure metal। Okay, प्योर मेटल में हम लोग उसके अंदर थोड़ा बहुत एक प्रॉब्लम रहता है कि अभी भी वो बराबर से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस थिंग, जस्ट वन सेकंड। हाँ, लुक एट दिस, iron has the ability to rust after certain time। iron will become rusted, वहाँ पे जिंक लग जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड स्टेनलेस स्टील विल रिमेन प्योर एज इट इज। ओके, ये देखो स्टेनलेस स्टील का अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो इट विल बी प्योर, लेकिन कार्बन स्टील अगर नॉर्मल नॉर्मल अगर टाइप का आयरन लूंगा तो इट विल बिकम रेडिश इन कलर। ओके, रेडिश मतलब उसमें जंग लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, so therefore the main thing is that कि pure iron has the ability to rust, but if you convert it into stainless steel, now how do you convert iron into stainless steel? I'll tell you। you take iron, okay, उस iron के अंदर you put a small trace of carbon, a small trace of chromium and some other element, और उसको mix कर देते हैं हम लोग। so it is alloyed together with other elements to strengthen and harden it, making it useful for construction। तो ऑटोमोबाइल के लिए पता है वो टीएमटी सलिया दिखाता है, टीएमटी सलिया ये वो, तो वहाँ पर बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह, यूटेंसिल्स हमारे घर में जो यूटेंसिल बनते हैं, चम्मच बर्तन वगैरह ये सब, ट्रक ट्रेन ट्रैक्स वगैरह ये सब, दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आयरन ओर। ओके, व्हाई स्टेनलेस स्टील? बिकॉज वो बारिश में पानी में खराब नहीं होगा। ओके, powdered iron is used to manufacture metallurgy products। okay, metallurgy product का मतलब क्या होता है? The products which is used in the process of metallurgy। metallurgy is the process of removing metals from the minerals। okay, metallurgy का main definition पता है क्या आएगा? if I tell you that what is metallurgy, तो अगर मैंने तुमको कोई भी ore दिया, okay, ore दिया, और ore देने के बाद I tell you to extract metal from it। okay, यहाँ पे देखो पूरा definition अच्छे से दिया हुआ है।
The branch of science and technology concerned with the properties of metal and their production and purification. This is called as metallurgy. Okay, production of the iron, production of gold, production of this thing. जमीन से हम लोग खोद के निकालते हैं तो वो मिक्स्ड फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग प्योर फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. मेटलर्जी को यूज करने के लिए वी नीड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, हमको मैग्नेट्स चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी कोर चाहिए, ऑटो पार्ट चाहिए, कैटालिसिस चाहिए. तो ये सब हम कहाँ से लेके आएंगे? पाउडर्ड आयरन से. आयरन का एक और इस्तेमाल वो है. Radioactive iron is also used as tracer element and in biochemical and metallurgical research. So it is also used in research. Iron blue is used in paint वगैरह, आई शेडो, कॉस्मेटिक, वहाँ पर भी it is used. Laundry blue, blue color बनाने के लिए काम में आता है. Iron, black iron oxide is used as pigment in polishing compound, metallurgy, medicine and magnetic inks. Okay, ink, black color का ink बनाने के लिए black iron oxide, और blue color का ink बनाने के लिए iron blue. तो ये अलग अलग कलर देने के लिए भी काम में आता है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ पे इट इज अवेलेबल. ओके, छत्तीसगढ़. द इंपॉर्टेंट एरियाज आर ये बैलाजिला डिस्ट्रिक्ट इन दांतेवाड़ा. ये वो झारखंड, लार्ज डिपॉजिट आयरन ओर हैज बीन फाउंड इन चचिरा. ये तो बेसिकली ये सिर्फ नाम दिया हुआ है. द आयरन ओर डिपॉजिट इन ओडिशा बिलोंग टू द हेमाटाइट वैरायटी कंटेनिंग 55 to 68% आयरन कंटेंट. तो कहाँ कहाँ पर है? क्योंझार, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़, कटक. These are different places where we can find hematite. Okay, in Karnataka also they have given the list of name. Now Goa has vast deposit of iron ore. It supplies iron for domestic use as well as for industrial purposes. So basically they have given different places जहाँ पे अपने को iron ore मिल सकता है. Okay, just one second. Let me go to the next page. फाइन. आंध्र प्रदेश में देखो, यहाँ पे करनौल, कृष्णा, ये सब जगह है. तमिलनाडु, इट इज फाउंड इन सलेम. महाराष्ट्र, राजस्थान. सो दे हैव गिवन बेसिकली अ मैप. ओके, इन दिस मैप ऑल दोस प्लेसेस हैव बीन नेम्ड जहाँ जहाँ पर आयरन इज फाउंड. ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग नाम दिया. रत्नागिरी, गोवा, ये डिफरेंट, कृष्णा. these all places are named. So these are the places on India, in India where you can easily find iron का डिपॉजिट्स. तो यहाँ पे हम आयरन का मेटलर्जी फैक्ट्री लगा सकते हैं. यहाँ पे हम जमीन खोद के हेमाटाइट, लिग्नाइट, मैग्नेटाइट निकालेंगे और फिर वहां से हम प्योर आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड फ्रॉम दैट प्योर आयरन वी कैन ऑल्सो मेक स्टेनलेस स्टील. Okay, so these are very important economic centers. Okay, next are the manganese. Okay, manganese is another black, hard and iron-like metal which occurs in natural oxide. तो manganese oxide MgO में exist करता है, normal form में exist नहीं करता. ठीक है. It is also important raw material for smelting of iron ore and also used for manufacture of ferro alloys. Now, what is the meaning of smelting of iron ores? Okay, smelting का नाम तुमने देखा रहेगा, बहुत सारा मेल्टिंग से मिक्स रहता है. ठीक है, मेल्टिंग एंड स्मेल्टिंग इज सिमिलर. आई विल शो यू द इमेज ऑफ दिस थिंग. देखो यहाँ पे स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू द ओर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अ बेस मेटल. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो, आयरन का जो ओर रहेगा, उस ओर को हम इतना हीट करेंगे कि उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट हो गए निकलने लग जाए. ओके, it will flow out in the liquid form. Initially iron will be stuck in solid form, but we'll heat it up and it will slowly get converted into liquid form. This particular process is called as smelting. ये देखो smelting, ये iron liquid form में निकल जाएगा. So this process is called as smelting. For smelting of iron ore we need manganese. ठीक है, वहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल हम लोग मैग्नीज को इस्तेमाल करते हैं. तो पहला, मैग्नीज इज यूज्ड टू मेक स्टील टफ. इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक स्टील. स्टील मैंने बताया था स्टील कैसे फॉर्म होता है. स्टील इज फॉर्म्ड व्हेन यू टेक आयरन ओर एंड यू मिक्स इट विद कार्बन, मैंगनीज, अलग अलग टाइप का जो मटेरियल आता है वो. ठीक है, तो यहाँ पर मैंगनीज भी इस्तेमाल होगा टू मेक स्टेनलेस स्टील यूजिंग आयरन. ओके, नाउ नेक्स्ट. उसके बाद मैंगनीज कहाँ पे यूज होगा? Manganese is used in manufacturing of black enamel. Black enamel is used to make bleaching powder, black color. It is used to form a number of important alloy. Alloy का मतलब क्या होता है? Brass is an alloy. क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज इज एन अलॉय. स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय. अलग अलग मेटल को मिक्स करके हम लोग नया मेटल बनाते हैं, उसको हम लोग अलॉय बोलते हैं. ठीक है, तो इट इज आल्सो वेरी यूजफुल इन मेकिंग अलॉयज. मैग्नीज इज यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज. ओके, ड्राई सेल बैटरी हम लोग जो अलग अलग सेल बैटरी लेके आते हैं ना, जो हम लोग रिमोट में लगाते हैं, वो सब तो वहाँ पे काम में आता है. इट इज यूज्ड टू मेक मैन्युफैक्चर वाइटल एंजाइम्स फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स. ओके, सो दैट इज ऑर्गेनिक, दैट इज लिविंग थिंग. ऑर्गेनिक चीजों में भी और बॉडी आल्सो नीड्स मैंगनीज.
Okay, and it also supports the immune system, and it also involves the development of reproduction. Manganese contains various vitamins such as K and B complex, which are very vital for the average human body. So not only as industrial or commercial use, but also manganese is used in human body for immune system and also for vitamin and minerals का sources. Okay, manganese is essential for the plant growth. It is involved. अच्छा, manganese कहाँ पे इस्तेमाल होगा? Manganese इस्तेमाल होगा for this thing. Okay. Acha, so now you know that the blood is red in color. Why? Because blood contains hemoglobin. Okay. Now that hemoglobin will contain iron, and that iron ore will be red in color. सेम जो अपना हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आई विल शो यू इमेज ऑफ दिस थिंग, जस्ट वन सेकंड। हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इसके अंदर है, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ओके, एक सेकंड, क्लोरोफिल, जस्ट वन सेकंड। हाँ, ये देखो, just one second, let me open the file. Okay, ये देखो, if you can see this image properly you will observe, अरे यार तो और छोटा हो गया, रुक जाओ वन सेकंड, लेट मी, हाँ ये इमेज, हाँ ये देखो, ये स्ट्रक्चर है हेमोग्लोबिन का और ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। द बोथ ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उसके बीच में सिर्फ आयरन है तो वो रेड इन कलर है, और जो प्लांट्स है जहाँ पे क्लोरोफिल है, प्लांट क्लोरोफिल, वहाँ पे जो बीच में मैग्नीशियम है तो वो ग्रीन इन कलर है। So we can observe that how human body and plant cell are very much similar. Look at this thing. यहाँ पे in center I'm having iron for human blood, and for plant I'm having magnesium. Entire structure exactly the same. देखो यहाँ पे कार्बन CH2C OH वो सब सेम है, बस ये फर्क क्या है कि यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम, यहाँ पे बीच में आयरन। तो आयरन बहुत इस्तेमाल जरूरी आता है ह्यूमन ब्लड में, और क्लोरो मैग्नीज बहुत काम में आएगा, मैग्नीशियम बहुत काम में आएगा इन प्लांट्स for making of chlorophyll. Okay, so some amount of magnesium is also required for humans and animals as it aids the action of many enzymes. Okay, enzymes हमारे body में है, hormones वगैरह, to act, for the hormones to act properly we need magnesium also, manganese. Okay, sorry, we need manganese. So these are all the different places in India in which we can find manganese reserves very easily. Okay, तो यहाँ पर हम लोग manganese extract कर सकते हैं. Next chapter, next page, just one second. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे मिलता है वर्ल्ड वाइड। इट इज़ फाउंड इन यूएसए, जापान, यूके वगैरह, और सॉरी, मैंगनीज फाउंड इन इंडिया इज सोल्ड टू यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, नेदरलैंड, वहाँ पे हम लोग बेचते हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, गोवा, यहाँ पे ये सब जगह पे लिस्ट दिया हुआ है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट विल बी सफिशिएंट। हर एक स्टेट से एक दो एग्जांपल लर्न कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट कॉपर। ओके, कॉपर इज एन इंपॉर्टेंट नॉन फेरस, यहाँ पे आयरन नहीं है, ठीक है, बट कॉपर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ओके, इन थ्री प्रिंसिपल कॉपर इज ऑब्टेन इन, कॉपर जो नेचर में रहता है वो या तो कॉपर सल्फाइड रहेगा, या तो कॉपर ऑक्साइड रहेगा, या तो फिर कॉपर कार्बोनेट रहेगा, ठीक है। तो कॉपर इज अवेलेबल इन नेचर इन दीज थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, फिर क्या क्या यूजेस। कॉपर देखो, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल। ओके, तुमने ये देखा रहेगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं। ओके, एक सेकंड, कॉपर एसी, सॉरी एयर कंडीशनर, पूरा टाइप करता हूँ मैं, एयर, अरे यार जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे, अरे वो मेरा, जस्ट वन सेकंड, हाँ ये देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कैसे हम लोग कॉपर को इस्तेमाल करते हैं अलग डिवाइसेस में। ओके, यू मस्ट हैव सीन इन डिफरेंट मशीन के ये लोग दिखाते हैं कि कैसे कॉपर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मशीन देखो,
split AC powered by triple convertible with ये वो अच्छा they specifically they mention that copper is used in making of this AC. Okay, copper air conditioner. Okay, ये देखो ये कॉपर, ये जो लेफ्ट में जो है वो कॉपर है इन ब्राउनिश इन कलर, और जो सिल्वर कलर है वो एल्यूमिनियम है. ओके, ये जो कॉपर ट्यूब है ये यूज होता है एसी के अंदर. ये जो कॉपर ट्यूब है ये यूज होता है एसी के अंदर. ओके, ये जो कॉपर कॉइल है, aluminum coil hai, these are all different types of coil available. Okay, now in that copper is very much better in quality. Okay, if you buy an AC, ये देखो यहाँ पे AC के ऊपर लिखा रहता है 100% copper. Okay, if you buy AC and in that AC if you are using aluminum का coiling, तो कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाएगा, इसका लास्टिंग इतना ज़्यादा नहीं है. बट इफ़ यू यूज़ कॉपर तो उसका लास्टिंग और ज़्यादा है. इट विल बी यूज्ड फॉर मैनी मैनी ईयर्स, 20-30 ईयर्स आराम से, उससे ज़्यादा भी जा सकता है वो. ठीक है, it is used in automobile, defense industry. ठीक है, it is used in iron, nickel to make stainless steel. It is used with zinc to form bronze. तो bronze कैसे फॉर्म होता है? Bronze is a mixture of copper and zinc. ठीक है, कॉपर और जिंक को मिक्स करो तो ब्रास बनेगा. ब्रास से हम लोग ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, गिफ्ट आइटम, ये शो पीस अपना, क्या बोलते हैं, फर्नीचर, फिर दरवाजे का फ्रेम, विंडो का फ्रेम, हैंडल वैंडल वगैरह वो सब वो बनता है ब्रास से. और ब्रॉन्ज कैसे बनता है? यू मिक्स कॉपर एंड टिन दैट इज यूज्ड टू मेक ब्रॉन्ज. ओके, so that is it is used in building construction for roofing and plumbing, and it is used in shipbuilding industry also. Why? Because it is having non-rusting property. These are all the places where you can find copper. Okay, so these are all the list given. This list एक बार दो तीन example कर लो, that will be sufficient. Next, bauxite. Okay, now bauxite is an oxide of aluminium. Okay, तो बॉक्साइट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. बॉक्साइट से हमको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एल्यूमिनियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइट. ओके, चलो कॉपर इज बेटर देन एल्यूमिनियम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एल्यूमिनियम का कोई इस्तेमाल ही नहीं है. Aluminum is also used in many different industries. We'll study over here. It is found in mainly in tertiary deposits and associated with laterite rocks occurring extensively either in plateau or hill ranges of peninsular India. Use here. Bauxite is the main source of aluminum. एल्यूमिनियम इज लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल. तो हम लोग अगर कोई भी गाड़ी का बॉडी बना रहे हैं, कोई भी अगर मशीन का बॉडी बना रहे हैं, सपोज तुम एसी का बॉडी पूरा ढांचा बना रहे हो, तो वी मेक इट ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, रेल वैगन, कोचेस, शिपिंग इंडस्ट्री, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस. हाउसहोल्ड अप्लायंसेस में वही वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह वो सब आता है. इट इज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो सर जितने भी वायर है, मोस्टली वी वायर दैट वी यूज दैट इज एल्यूमिनियम वायर. And pure aluminum is the best material for making headlight reflector. Okay, and mirrors in the telescope, तो वहां पर भी it is very good reflector. Okay, so distribution कहाँ पर आएगा? Just one second, let me just open another page. अच्छा, do you know aluminum at one point of time was very expensive, huh? Because of the availability of bauxite and Bayer's process, aluminum was very available at a cheap price. Okay, तो जर्मन पीपल दे फोकस्ड अलॉट ऑन कॉपर, उन्होंने एल्यूमिनियम पे ध्यान नहीं दिया. ओके, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अमेरिका ने कॉपर के ऊपर ध्यान दिया ही, बट साथ साथ में अमेरिका ने एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी उसको डेवलप कर दिया, बिकॉज ऑफ विच दे वर एबल टू मेक कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स एट अ वेरी चीप प्राइस. बट ऑन द अदर हैंड जर्मनी हैड टू पे अ वेरी ह्यूज प्राइस फॉर कॉपर. कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव देन एल्यूमिनियम. तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ऑल द मशीन्स, प्लेन्स, कार्स वगैरह दैट जर्मनी यूज्ड टू बिल्ड, इट यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव, एंड अमेरिकन एंड इंग्लैंड, बोथ ऑफ दीज दे यूज्ड टू बी वेरी चीप. उसकी वजह से अमेरिका और इंग्लैंड ने इतना प्लेन बनाया, फाइटर प्लेन, इतना टैंक्स वगैरह वो सब, जितना जर्मनी में नहीं बना पाया. ओके, बिकॉज दे वर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन कॉपर. तो हम ये देखते हैं कि कैसे ये मिनरल्स और कैसे ये साइंस वॉर पे भी अफेक्ट होता है. ओके, सपोज अगर मैं एक कंट्री हूँ एंड आई वांट टू मेक 100 टैंक्स, तो मनी मैटर्स. अगर ये टैंक का हर एक का बॉडी अगर 1 करोड़ में आ रहा है, तो मुझे कम पैसा रहेगा बनाने के लिए. बट अमेरिका और इंग्लैंड, इफ दे कैन मेक इट इन 10 लाख रुपीज, तो यूजिंग दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी दे विल बी एबल टू मेक अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ टैंक्स एंड प्लेन्स. ओके, सो दैट द एग्जांपल ऑफ गोवा, ओडिशा, गुजरात वगैरह, यहाँ पे मिलता है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट मिलता है. ओके, द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्लांट इन इंडिया इज एट रेणुकूट इन उत्तर प्रदेश. इट इज द सप्लाई ऑफ बॉक्साइट फ्रॉम अमरकंत प्लांटेशन एंड रांची. तो यहाँ पे दिस थिंग इज अवेलेबल. ओके, so I'm ending the lecture now, and I think the chapter is over. Fine, we'll begin with the next chapter. Okay.